Ladies and gentlemen, I welcome you all to the Q2 and H1 FY25 post-earnings conference call of Mech Power CNC Machines Limited. Today on the call from the management, we have with us Mr. Rupesh Mehta, Chairman and Managing Director. As a disclaimer, I would like to inform all of you that this call may contain forward-looking statements which may involve risk and uncertainties. Also, a reminder that this call is being recorded. I would now request Mr. Rupesh Mehta to detail us about the business and performance highlights for the quarter that went by and his growth plans and visions for the coming year, post which we will open the floor for Q&A. Over to you, sir. Good afternoon, everyone. First of all, I honestly welcome you all to Q2 FY25 post-result conference call. Thank you very much for believing in your company. As an investor, I wanted to assure you that we are fully committed to maximize value for our shareholders, and we promise to deliver the best with your support and backing. We are confident to achieve even greater heights in the day and years to come. We will have a brief about our overall performance of the company for the quarter ended 30th September 2024, post which I will take your questions. The financial result and presentation have been posted on the company's website, and hope you have had an opportunity to go through the same. So I will start with the one by one highlights. I will give you the quickly brief about the Q2 FY25 revenue is increased by 71.10 compared to Q2 FY25 EBITDA margin is also increased by 41% on YOY. Q2 FY25 PAT margin is increased by 8.30, which is 35% on YOY. As I announced that right now our production capacity is 2,000 machines. A new 500 machine capacity, CapEx, and some of the machines and construction work is on progress. We hopefully completed this 500 machines adding capacity on new financial year. Maybe in April, we'll utilize this 500. And as I promised on quarter, we'll increase the CapEx also. So last year, CapEx Q2, our CapEx margin 2 crore 52 lakh rupees. So averagely, we are increasing the CapEx also. Our 600 kilowatt solar is almost 60-70% work will completed. Within short time, I will utilize the solar power plant. And I would like to announce that right now we have 209 people in sales and service, and which is almost double than last quarter. So we are increasing our distribution network, and we are going to start the new office and tech center. Right now we have a Shapar, Jamnagar, Ahmedabad, Mohali, Coimbatore, and new tech centers and office will be inaugurated in November and December respectively in Faridabad, Hyderabad, Bangalore, and Pune. We are going to start the new tech centers and offices. I would like to announce that in January, as in my last phone call, I announced that we are going to display the latest technology machines in the January IMTEX exhibition in Bangalore, where we are successfully completed the trial of 5-axis machines, and we are displaying these machines for our customers and the segment. Normally, this 5-axis machine used for the aeronautic industries and defense industries. Second machines, we are displaying that high-speed 20,000 RPM drill tap center. Normally, this kind of machine is used for the
EMS sectors. So we are displaying the double-digit machines in this exhibition, and we are participating in the India's largest exhibition, IMTEX Bangalore, with the double-digit higher and new technology where we'll use the robotic and gantry also. And some of the new generations features we are adding in this exhibition is IoT 4.02. So where our customer can track the machines through their mobile, they can get the all kind of the programming, modification, everything is through the mobile. So we are entering into the world market. And second update is that as slowly our production capacity is increasing, so slowly we are expanding our distribution network also. We are expanding the some of the sector also. In a Q2, we already start the export also. In Q2, we get the good significant growth on export also. So gradually we'll increase the export as our production capacity will increase. And world largest exhibitions held at Germany, Hanover. It is called EMO. It is the number one exhibitions for the machine tools business. So we are participating in that exhibition. It will be on September 2025. So we are expanding our production productivity. We are adding the new product basket. We are expanding our distribution network. And now slowly we are entering into the world market also. And as I announced in last press conference that we received the one order from the defense sector. The one machine's cost is 2.95 crore, which is the second highest value in MacPower history for the one machine's cost. So 2.95 crore order also we received. So this is and more detail it is in presentations. Our order book is significantly increasing. So all the detailed data, it is in presentations. And Vinay, shall we start the question and answer? Sure, sir, sure. All those who wish to ask a question may use the option of raise hand. In case you are unable to raise hand, you can just drop a message on chat and we'll invite you. We'll take the first question from Kush Nahar. Kush, you can go ahead. Hello, sir. Am I audible? Yeah, you're audible. Speak up a bit louder, Kush. Yeah, thank you for the opportunity, sir. Two, three questions I had. One, sir, any particular reason why our sales in this quarter was only 12% compared to our previous 3 quarters where we have grown around 24% and 30%? Second, our EBITDA margins are 18% in this quarter. So what kind of EBITDA margins can we close the year in? No, first the question, we have a good order book, and as I told you last meeting that we are increasing the production productivity. So definitely we delivered some of the machine very quickly from our order book, where we are getting the good 3 to 4 month delivery time. So we increased the manpower, we increased the productivity. So according to the order books and according to our capability and capacity, as we promised that will increase by 20 to 30% gradually. Second, margin is improved with the 2-3 things. The top line, जैसे कि बढ़ेगा कुछ भाई, वैसे margins will definitely improve. And because of the high valued machines, some of the high valued machines. And third thing is some of the major component which we are buying from the market, almost more than 50% that component we are manufacturing in-house. So our margin is improved by the top line. Our fixed cost is almost the same.
Second, some of the export we completed in this Q2. And third is some of the component we manufacture in-house. So that's why our margin, and as we promise is that this margin will gradually improve by quarter on quarter and year on year. So it may be maybe once in this financial year, it may be a 17 to 20% will finish in this financial year. सर वो ये क्वेश्चन पूछना चाह रहे हैं कि इस बार आपका क्वार्टर में रेवेन्यू सिर्फ 12% ग्रो हुआ है at 71 crores versus जो last time in Q1 we had grown at a higher pace. 13%. Yeah. Yeah. So why is it lesser in terms of 12%? 12% કેમ હોય? हाँ, जो बाकी का जो पेमेंट आने का था, प्रोडक्शन भी काफी अच्छा हुआ है, ऑर्डर बुक भी अच्छा है, लेकिन कुछ पेमेंट नहीं आने के कारण हम लोगों ने 13% का टॉप लाइन पे ग्रोथ किया, लेकिन कुछ हायर एंड मशीन की जिसकी प्रोसेस टाइम हमने 6 to 7 मशीन जो है वो एक्सपोर्ट के लिए दिया, तो मार्जिन्स पे हमने ध्यान दिया, और दूसरा हमने वहाँ पे जैसे बताया कि कुछ स्पेशल पर्पस मशीन है, कुछ इम्टेक्स की जो बड़ी तैयारी चल रही है, तो मार्जिन अपना जो टॉप लाइन है उसमें थोड़ा मार्केट साइड से पेमेंट कम आया, क्योंकि पेमेंट आने के बाद ज्यादातर मशीनें हम देते हैं, तो एक रीजन ये भी है। लेकिन हमने ये क्वार्टर पे बैकवर्ड इंटीग्रेशन पे ज्यादा काम किया है, एक्सपोर्ट पे ज्यादा काम किया है, और अब वो जो हमारे पास कुछ इन्वेंटरीज भी फॉरवर्ड हुई थी, जो इसका एडवांस आ गया था, पेमेंट रियलाइजेशन बाकी था। So do we see this as a temporary problem, and we are confident that we'll close the year with 25% top line growth in FY25? Yes, definitely we'll grow, get the 25% growth as मैंने लास्ट मीटिंग में कमिट किया था, और उससे भी ज्यादा टॉप लाइन से ज्यादा हम लोगों ने इस बार मार्जिन्स पे भी फोकस किया है, कि टेलीस्कोपिक कवर है, कुछ हाइड्रोलिक्स की किट्स है, अब नेक्स्ट फेजिस पे हम लोग टरेट है, कुछ स्पिंडल्स हम लोग इंपोर्ट कर रहे हैं, तो हम लोग दो तरह से काम कर रहे हैं कुछ भाई, कि हम लोग कंपोनेंट पे भी ध्यान देंगे, बैकवर्ड इंटीग्रेशन, जिससे कि मार्जिन भी इम्प्रूवमेंट होता दिखेगा, और जो ऑर्डर बुक है उसके लिए हम लोगों ने काफी बड़ा एक्सपांशन टीम का भी किया है, टैक्स सेंटर्स का भी किया है, तो यस यू कैन से 25% ईयर ऑन ईयर जो ग्रोथ का हमारा टारगेट है वो 100% ये साल अचीव हो जाएगा। Thank you for those answers. So just two last questions. Export, can you tell us the segment, the export product, where was it used, in which segment? एग्जैक्टली वो थोड़ा फॉरवर्ड लुकिंग है, लेकिन डीलर्स के थ्रू ही जाएंगे, और कुछ डीलर्स के साथ कुछ एमओयू भी किया है, क्योंकि वहाँ पे एक्सपोर्ट करना मतलब सर्विस और स्पेयर्स और ट्रेनिंग, तो ज्यादातर एक्सपोर्ट्स जो रहेगा अगले एक साल का वो डीलर्स के थ्रू और नेटवर्किंग बनाने में जाएगा। अब डीलर कहाँ पे सेगमेंट पे देता है वो थोड़ा डिटेलिंग आना अभी बाकी है, पर हम लोग डायरेक्ट नहीं जाएंगे, हम जाएंगे कोई भी कंट्री का जो डीलर है उसको हम एक्सपोर्ट करेंगे, देन ही विल डिस्ट्रीब्यूट द लोकल नेटवर्क थ्रू लोकल नेटवर्क, तो सेगमेंट का पता नहीं चलेगा उसमें कि कौन से सेगमेंट। नॉर्मली जो कंट्रीज हम कर रहे हैं वहाँ पे ऑयल एंड गैस और पंप एंड वाल सबसे ज्यादा है, तो वहीं पे गया होगा ज्यादातर। And so margins and will be better in export compared to domestic sales? Yes, it is better than domestic sales, and we can get the DPB also, जो गवर्नमेंट का एक्सपोर्ट पे DPB का स्कीम भी है, तो मार्जिन डेफिनेटली दैट इज द रीजन। Right. So just last question. So अपन जो ये capex we are planning in Gujarat once the land is allotted, so are we hiring any senior management level people so that do we have the appetite to digest such a big expansion, or do we need more manpower, more senior management personnel going ahead?
Yeah, we have right now very good senior people in our team. सेल्स के लिए हमारे पास 25 ईयर से एक्सपीरियंस वाइस प्रेसिडेंट है. एक नया जो रवि मोदी का अनाउंसमेंट किया था, ही इज ऑल्सो मोर सीनियर पर्सन. और हमें जो जरूरत पड़ेगी वो रिसर्च लेवल पे ज्यादा पड़ेगी, जिसके लिए हम लोगों ने इंटरव्यू करके बैंगलोर के अंदर जो हमारा नया R&D सेंटर शुरू हो रहा है नेक्स्ट मंथ से, उसके अंदर हम लोग टेक्निकली बैकग्राउंड्स पे हमें ज्यादा जरूरत पड़ेगी. और यस, अभी हमारे पास 1000 अप्रोक्सीमेट लोगों की टीम है टोटल मिला के. और फ्यूचर में जो रिक्वायरमेंट R&D की और जो प्रोडक्शन प्रोडक्टिविटी की और एक्सपांशन की रहेगी, डेफिनेटली वी रिक्वायर्ड द गुड सीनियर लेवल पीपल. और उसमें हमें ज्यादा प्लांट हेड, उसके बाद हमें प्रोजेक्ट हेड, वो सारे मैनेजमेंट की जरूरत पड़ेगी. और उसके लिए हमारे पास मोर देन 12 पीपल की HR की टीम है. दे आर कंडक्टिंग द इंटरव्यूज, क्योंकि हम लोगों ने काफी ब्रांच लेवल का काम जो है HR से लेके ट्रेनिंग से लेके सर्विस से लेके वो ब्रांच लेवल पे डाइवर्ट कर दिया है. तो यस, ये जरूरत पड़ेगा और डेफिनेटली विल हायर दिस काइंड ऑफ पीपल ऑल्सो. Okay, sir. Thank you so much for the answers. Thank you very much. Thanks, Khush. We'll take the next question from Jaivir Singh. Hi, hello sir. Good evening, sir. Good evening, And Jay. congratulations for the sir good set of results, sir. And I have few questions, sir. Sir, what is the status of the defense MOU we have signed with Gujarat government? Can you provide timeline for this project, sir? No, it is a government of Gujarat. So there is a steps. Uh, Almost I can say you that there is a 6 steps to start up this new land and new factory. Almost halfway we completed through the primary approval from the Ministry of Industries. After that, they send it this to the local level body, and after that, it will be in collector. So almost half level journey is already done. So we hope that we'll get this new project land in before March or April. Sir, any finished timeline, sir, that the project can be completed by till FY 26, 27, like that only? After receiving, we'll work phase. Phase wise, yeah, okay. We have a huge land we demanded, but we'll add the capacity by 2000 machines in first phase with the foundry and some of the backward integrations for the some component. So we'll add the 2000 machine in phase 1. Simultaneously, we'll add the foundry for more than 5000 machines. Approximately our casting capacity would be more than 2000 ton. So we will add the backward integration unit and the foundry and 2000 machine extra capacity. It will require us to complete by 15 month to 16 month for phase 1. After that, according to the market, according to the need, we'll add the more and more capacity. Right, sir. Sir, you have mentioned about backward integration, sir. My next question, sir. Can you shed some light on the backward integration and what value it will bring to our company, sir? Backward integration means, Jayarubhai, right now we are buying the castings from the vendors. And last year we are buying the telescopic from the vendors. So almost 50% telescopic we are manufacturing right now in-house. 50% spindle we are manufacturing in-house. So some of the component we are buying from the import or buying from the some vendors. That component will manufacture in our existing plant or in new plant. It gives us the opportunity to increase the quality, delivery, and cost effective also.
Sir, one more question, sir, and it will be my last, sir. Sir, in previous con calls, you have guided that we will achieve 20 to 25% in EBITDA. So, but we have achieved 18% till now, sir. Sir, Yeah. any further, can you tell me that by which quarter or by which year we can achieve that? Not normally, in capital goods industries, as I always told you, many of our in our con call that quarter one business is 15 to 20%, quarter two is 20 to 25%. So capital goods business is increased by quarter on quarter. Quarter one is average slightly down, quarter two little bit high, quarter three and quarter four. If you go through all the companies' balance sheet on quarter four, so year on year definitely will achieve 20 to 30% top line, 20 to 30% on EBITDA margin, and 20 to 30% on the PAT margin. So definitely will achieve that. Sir, if you permit me, sir, one last question, sir, regarding R&D Center Bangalore. Can you tell me what value addition will be after the R&D Center Bangalore? No, we will get some of the new generations machines technology, and that R&D center will utilize for the 2-3 aspects. One is for the service center, one is for the sales, one is for the R&D center. So we'll utilize these premises for 3 different aspects, but definitely we'll get some of the new generations technology through this Bangalore R&D center, and some of the new things we learned, we achieved the good result from the Bangalore R&D center. That's why we'll display the new generations machine on January 2025 Bangalore exhibition, where we are going to display the new generation 5-axis machines and high-speed EMS segment machines. So backward integration for the turret, ATC, or rotary table. So some kind of the component will develop over there in Bangalore R&D center, and new generations machines will develop in the Bangalore plant. Sir, thank you. Thanks a lot, sir, and congratulations, sir. Thank you. Thank you. Thanks, Jaivir. We'll take the next question from Pranav. Pranav, please unmute. Yeah. Hi, sir. Congratulations on good sets of number. Thank you very much, Pranab bhai. Yeah. Yeah. So Rupesh bhai, my question was ki what is the demand scenario currently looks like overall with the capex cycle going on? Overall industries by Pranab bhai, market growth is compared to Indian Machine Tools data, and some of the Fanuc, Siemens and Mitsubishi jointly, if we calculate it, the growth is 15 to 20% in India compared to last year. But I think for us, if we require the more growth, then we have to expand our distribution network. Almost our distribution network is double than compared to last year. So our market share is just 2 and 2.5%. So yeah, I think still we have a lots of areas is vacant. So market scenario is almost, if you go through the order book, is the highest ever order book right now we have. We are facing the challenges of Diwali holidays and Navratri, Dussehra, so lots of holidays. So we'll ramp up this production on this quarter because of this 8 to 10 days holidays we have in last October month. But the demand wise, there is 15 to 20% according to my personal data from the various aspect is increase, but definitely will increase more growth from the year on year.
Okay. Rupesh, my next question is we are already focused more on aerospace and defense. Can we expect some order inflow from EMS because that is quite a rising sector? And I also remember once you told that if iPhone has to do manufacturing in India, it needs around 50,000 to 55,000 CNC machines. So our a peer who is present is setting up a lot of assembly lines for manufacturing for EMS services. Do we also have plans to enter this segment? And उसमें कितना मार्जिन बन सकता है और मतलब आपका टेक क्या है इसके ऊपर? इसमें इसमें मैं बताऊं कि अभी ये जो है कोई भी प्रोडक्ट आप मार्केट में लेके आते हो तो उसके लिए आपको प्रोडक्ट मैन्युफैक्चरिंग एक फर्स्ट चैलेंज रहेगा, क्योंकि ये कंट्री के लिए इस टाइप की प्रोडक्ट बनाना थोड़ा नया रहा है। तो पहले तो प्रोडक्ट आएगा, उसके बाद हमारे पास ऐसा नहीं है कि डायरेक्ट एप्पल और डायरेक्ट मिक्स આપણું મોબાઈલમાં બીજું सैमसंग છે या उसके वेंडर्स बहुत है। इन फ्यूचर जो मार्केट बढ़ेगा 50,000 तो ओनली सिंगल कंपनी या 2-3 कंपनी नहीं लेगी, उनके पास उनका वेंडर बेस भी बहुत बड़ा डेवलप हो रहा है। तो हम लोग प्लान ये करेंगे, क्योंकि डायरेक्ट फर्स्ट फेज में देने में काफी नंबर्स ऑफ मशीन मांगेगा वो, और टर्म्स एंड कंडीशंस भी थोड़ी टफ रहेगी। सो ये मशीन जो है हम लोग एक R&D सेंटर की प्रोडक्ट है, मार्केट को स्ट्रेंथ दिखाने के लिए कि वी कैन मैन्युफैक्चर दिस मशीन्स, और उसके लिए हमारे पास जो कस्टमर्स रहेगा वो उनका एंसिलरी और सब्सिडरीज या वेंडर्स रहेगा। और ये प्रोडक्ट हम लोग ग्रेजुअली इंक्रीज करेंगे, जैसे कि हमने VTL जो था हमारा वर्टिकल टर्निंग लेथ, जैसे जैसे कैपेसिटी बढ़ता गया हम लोगों ने हर महीने 2 मशीन VTL पे फोकस किया, जो लास्ट ईयर की कंपैरिजन में काफी बड़ा रैंप अप है ये प्रोडक्ट का। उसके बाद डबल कॉलम मशीनिंग सेंटर जो हमने लास्ट ईयर में एक ही मशीन बनाया था, उसके सामने हम लोग ये मंथ से पर मंथ एक मशीन बना रहे। तो काफी बड़ी जो हमारी प्रोडक्ट बास्केट है उसके ऊपर ये प्रोडक्ट भी हम लोग ज्यादा रैंप अप करेंगे उनको नया प्लांट के अंदर आने के बाद। और डिफेंस एरोनॉटिक और ये जो EMS सेक्टर है उसके लिए डिफेंस लाईट वाला आलाय त्याला काहीतरी माणूस पाहिजे त्याच्यासोबत पकडायला. क्या समझा नहीं क्वेश्चन, थोड़ा आवाज कट गया है। Pranav, can you speak a little louder, please? Yeah, Rupesh bhai. So I was asking what are the margin difference, मतलब तीनों में कितना मार्जिन रहता है कि एरोस्पेस में क्या मार्जिन बनता है, उसके बाद डिफेंस में क्या बनता है और EMS में क्या बन सकता है गोइंग फॉरवर्ड? वेरी करेगा आपका प्रोजेक्ट टू प्रोजेक्ट। ऑलमोस्ट डिफेंस में आपका जो मार्जिन है वो नॉर्मल से 5 to 15% तक बढ़ सकता है। सर्विसेज, इफ दे आर आस्किंग मोर एंड मोर सर्विसेज, कुछ ट्रेनिंग ज्यादा है, कंपोनेंट डेवलपमेंट ज्यादा है, तो मार्जिन डेफिनेटली इंप्रूव आएगा, क्योंकि इनको वैल्यू एडेड सर्विसेज बहुत चाहिए। तो नॉर्मल मशीन से मार्केट के इसके अंदर मार्जिन है वो 5 to 15% इंक्रीज होता है। ओके ओके हाँ भाई, ओके या थैंक यू Rupesh bhai. Thanks, Pranav. Before moving on to the next participant, I would request the participants to restrict their questions to 2 participants. We'll take the next question from Samarth Nagpal. Please go ahead. हाँ जी समर्थ भाई। गुड आफ्टरनून सर, कैसे हैं रुपेश सर? सर कॉन्ग्रेचुलेशंस फॉर अ ग्रेट सेट ऑफ नंबर्स। वेरी मच। हेलो, ये 2-3 क्वेश्चंस थे, 2 क्वेश्चंस थे, मैं 2 में ही रिस्ट्रिक्ट करूंगा अभी। सर हमारा जो कैपेसिटी अगर मैं लास्ट Q2 से कंपेयर करूं तो ऑलमोस्ट 30% कैपेसिटी इंक्रीज हुआ है, मोर देन 30%। हम 1500 मशीन्स के कैपेसिटी पे थे, अभी हम 2000 मशीन्स के कैपेसिटी पे आ गए। मैं अगर अपना नंबर ऑफ यूनिट सोल्ड, नंबर ऑफ मशीन सोल्ड देखूं इस क्वार्टर के अंदर, डिस्पैचेस जो है मेरे, और जो मेरा रेवेन्यू है वो 13 से 14% में ही इंक्रीज हुआ है।
अगर मैं नंबर ऑफ मशीन्स भी देखूं और वो भी देखूं तो कहीं पे मेरा कैपेसिटी यूटिलाइजेशन जो है वो मैक्स आउट किया है या थोड़ा सा कम हुआ है प्रोडक्टिविटी? नहीं, प्रोडक्टिविटी ऑलमोस्ट 80% से ऊपर गया है, लेकिन कुछ इन्वेंट्री जो है अपने पास आगे जिनकी पेमेंट नहीं आई है, और 30th को हम लोग जब मंथ क्लोज करते हैं तो बिलिंग अपना होगा, पेमेंट आया है उसका, अभी उसका पेमेंट फर्स्ट को आया, सेकंड को आया, तो प्रोडक्शन पे हम लोगों ने 85% के बीच में प्लांट कैपेसिटी यूटिलाइज किया है। और इसके साथ में हमने इस बार जो इन्वेंट्री की है वो अलग है, क्योंकि फेस्टिवल सीजन्स में ज्यादा डिमांड रहती है, तो प्रोडक्शन में कोई इश्यू नहीं है, ऑर्डर बुक में कोई इश्यू नहीं है। पेमेंट आने में हॉलीडेज जो ज्यादा आया है तो उसके कारण थोड़ा और हम लोग टॉप लाइन को ऊपर ले जा सकते थे, लेकिन प्रोडक्शन में कोई इश्यू नहीं है। सर एक और क्वेश्चन सर, जो मेरा ऑर्डर इनटेक भी है Q1 में जो हमारा कॉल हुआ तो उसमें भी आपने बताया था कि डिफेंस के ऑर्डर्स वगैरह पिकअप होना शुरू हो जाएंगे, तो मेरा जो ऑर्डर इनटेक है Q2 के अंदर, इफ आई कंपेयर विद लास्ट ईयर, तो ऑर्डर इनटेक भी जितने मेरे ऑर्डर्स रिसीव हुए हैं Q2 ऑफ दिस ईयर कंपेयर टू Q2 ऑफ लास्ट ईयर, और हमने सेल्स टीम भी काफी ऐड की है, तो आई एम श्योर कि हमारे फुट ऑन द ग्राउंड भी ज्यादा हैं, उसके अंदर भी 13-14% का इंक्रीज आया सर। तो मतलब कहीं पे ट्रेनिंग के अंदर या प्रोडक्टिविटी दैट वाइज कि अभी हमें Q3 में ऑर्डर्स ज्यादा मिलेंगे, या जो टेंडर्स भरे थे उसका अभी तक अलॉट नहीं हुआ है, तो वो कुछ है क्या? तो दो रीजन है। एक तो हमारा जो पहला रीजन जो है कि जो सेल्स फोर्स आप उस रखते हो तो वो सेम मंथ में जाके फील्ड में जाके ऑर्डर लेके आएंगे। यू हैव टू गिव देम 2 to 3 months मिनिमम। एक तो एक 1 वीक का 10 days का उनका प्लांट पे ट्रेनिंग रहता है, उसके बाद हमारी प्रोडक्ट को समझना, कस्टमर्स को समझना और एक प्रोसेस में ऐड करना। तो कोई भी क्वार्टर में रखी हुई टीम है वो सेम क्वार्टर में आपको रिजल्ट नहीं देगी। उसके लिए जो ऑर्डर बुक हमारा बढ़ा है उसके सामने ग्रेजुअली हमारा ये साल का ये क्वार्टर का ऑर्डर है वो उससे भी ज्यादा बढ़ेगा, क्योंकि मंथ ऑन मंथ हम लोग ऑर्डर कैलकुलेट करते हैं, हम लोग वीक ऑन वीक एनालिसिस करते हैं और अभी डे ऑन डे करते हैं। तो हमारे पास जो ऑर्डर की एवरेज कभी 4 या कभी 5 है, वो 100% 6 से 8 पर डे। तो ऑर्डर इनटेक इज ऑल्सो इंक्रीजिंग बिकॉज हमने काफी बड़ी सेल्स फोर्स ट्रेन की है, रिक्रूट की है, और जो आपका टेंडर का है उसके अंदर टेंडर की जो बिकॉज ऑफ हॉलीडेज खुलने का जो रेशियो है वो भरने के रेशियो से ऑलमोस्ट 10% पे आ गया है। नॉर्मली जो रेशियो था वो 20-25% होना चाहिए। इसे फॉर एग्जांपल 100 करोड़ के टेंडर हमने बिड किए तो 20-25 करोड़ के ओपन होते हैं, लेकिन इस बार बिकॉज ऑफ हॉलीडेज काफी रहा है तो लास्ट 2 months के अंदर एवरेज निकालता हूँ तो 10 करोड़ 100 करोड़ के सामने 10% ही खुले है, लेकिन उनकी वैलिडिटी के लिए 90 days का ही टाइम है। उसके बाद उनको वो एक्सटेंशन के लिए जैम के ऊपर काफी बड़ी प्रोसेस करनी पड़ेगी। तो मुझे लगता है कि वो टेंडर्स जो ओपन नहीं हुए थे लास्ट मंथ में वो काफी ज्यादा ओपन होने के चांसेस है। टेंडर की फ्लोट आने में भी काफी बड़ा ग्रोथ दिखा है, काफी टेंडर्स कंपेयर टू लास्ट ईयर बढ़े। आपको फिगर में इसलिए कम दिखेगा कि एक 200 करोड़ का टेंडर था वो जो कैंसल हुआ, MSME का था, मिनिस्ट्री ऑफ स्मॉल एंड मीडियम फॉर ITI, पूरे इंडिया की ITI का था। वो लास्ट ईयर हमने फिलअप किया था और वो टेंडर ही कैंसल हुआ है, इसलिए लास्ट ईयर की टेंडर फिलअप और दिस ईयर की टेंडर फिलअप में गैप दिखेगा बिकॉज ऑफ ये बड़ा एक टेंडर है वो कैंसल हुआ था। पर जनरल वे में टेंडर फाइलिंग बढ़ा है, ऑर्डर इनटेक बढ़ा है, पेमेंट का रियलाइजेशन जो है वो थोड़ा स्लो हुआ था और उसके सामने टेंडर खुलने का भी एक स्लो हुआ है। तो मुझे लगता है कि ये क्वार्टर में हम लोग रैंप अप करेंगे और थोड़ा हमने प्लांट कैपेसिटी और जो हमारी प्रोडक्शन की कैपेसिटी है उसको हमने ये जो बड़ा एग्जीबिशन हम करने जा रहे हैं इमटेक, उसमें 10 से 12 मशीन हम डिस्प्ले कर रहे हैं जो नई जनरेशन की टेक्नोलॉजी है।
जो हमें कैपेसिटी दिखानी होती है एग्जीबिशनों में कि हम क्या बना सकते हैं और क्या कर सकते हैं, तो थोड़ी कैपेसिटी हमने ये क्वार्टर में ये नई जनरेशन की प्रोडक्शन, क्योंकि एक ही महीने में पूरा कैपेसिटी यूज किया तो थोड़ा डिस्टरबेंस आ सकता है। तो 2-3 रीजन है कि बैकवर्ड इंटीग्रेशन पे हमने थोड़ा सेम मैन पावर से काम किया, पर प्लांट का जो कैपेसिटी है वो हमने 84-85% के आसपास रियलाइजेशन किया है। और कुछ मशीन्स हमें एडवांस आ गया है, डिलीवरी बाकी है, पेमेंट आ गया है, उसका शेड का काम बाकी है, दिवाली की छुट्टी थी इसलिए बाकी था। तो इस तरह से वो थोड़ा आगे फॉरवर्ड हुआ है, लेकिन और कोई प्रॉब्लम्स नहीं है कि हम लोग आगे, पर डेफिनेटली विल अचीव 20-25%। सर ये एक फाइनल क्वेश्चन था, मतलब इफ द टाइम स्क्वीजन, मेरा जो नेक्सा वर्टिकल है उसका परसेंटेज रेवेन्यू क्या है इस क्वार्टर के अंदर? मतलब बिकॉज हमारा 7 to 8% रहता है और हमारा ये प्लान है कि हम इसको 12-14% तक लेके जाए, तो इस क्वार्टर में कुछ है उसके अंदर सब्सटैंशियल इंप्रूवमेंट? उसमें ऑर्डर इनटेक बहुत बड़ा, कुछ हम्म। ऑलमोस्ट मैं बताऊं कि डबल कॉलम मशीनिंग और वीटीएल जो हमारी नेक्सा प्रोडक्ट बास्केट है उसके अंदर, और ऑटोमेशन, उसमें डबल डिजिट पे करोड़ों पे ऑर्डर रिसीव्ड हुए हैं। उसकी एग्जीक्यूशन हम ये क्वार्टर में करेंगे। तो यस, हमारा नेक्सा बास्केट जो है उसमें काफी बड़ा ऑर्डर इनटेक आया है, लेकिन काफी बड़ी मशीन्स और लॉन्ग प्रोसेस टाइम होने के कारण डिलीवरी है वो ये क्वार्टर में हम उनकी करेंगे। तो डेफिनेटली वो क्वार्टर पे भी जो कैपेसिटी बढ़ा है उसके कारण ऑर्डर और डिलीवरी दोनों एग्जीक्यूट होगा। ठीक है सर, थैंक यू सर, आई विल कम बैक इन द क्यू सर, रुपेश सर, थैंक थैंक यू। यू। We'll take the next question from Deepak Pandey. Hi sir, congratulations on good set. Thank you. Rupesh ji, just 3 to 4 short questions from my side. First question sir, ये जो हम credit period दे रहे हैं, which we are selling in advance only, is that somehow impacting the sales growth? वो customer को कहीं हम short credit period दे के अपना scaling up impact तो नहीं कर रहे हैं? हमारा पहला तो जो है क्रेडिट देने का काम डायरेक्ट कस्टमर को कभी नहीं। ये क्रेडिट का जो स्टॉक एंड सेल करने का जो एक फैसिलिटी लास्ट Q1 में मैंने बताया था, वो था कि हम अपने डिस्ट्रीब्यूटर को, डीलर्स जो एक्सक्लूसिवली 100% मैक पावर के लिए काम करते हैं, उनके लिए अवेल करेंगे। लेकिन उतना मशीन्स नहीं है कि वो हमें कोई इम्पैक्ट देगा। लेकिन यस, उससे उनका और अपनी जो सेल्स का है कि कुछ कैटलॉग प्रोडक्ट अगर उनको रेडी में शोरूम में देखने को मिल जाती है तो उनको कस्टमर्स को कॉन्फिडेंस भी बिल्ड होता है। तो कुछ नई मार्केट्स में हमने ये एक्सपेरिमेंट किया है जिसमें कस्टमर को क्रेडिट नहीं देना है। Understood हाँ sir. जी, हाँ जी। सर दूसरा क्वेश्चन, अपना रियलाइजेशन फॉर द क्वार्टर वाज 18.7 लाख पर मशीन, तो ये इस साल नेक्स्ट फ्यू क्वार्टर्स में कैसा दिख रहा है सर? और अगेन FY26 में क्या एक्सपेक्ट कर रहे हैं? मैं एक्सपेक्ट कर रहा हूँ कि हमारा जो एवरेज नेक्सा प्रोडक्ट की वैल्यू जो है वो काफी बड़ी रहती है, और कुछ ऑर्डर्स जो है अपने पास 2.95 करोड़ के एक मशीन्स की, तो एवरेज प्राइस जो है वो डेफिनेटली इम्प्रूव आएगी। मेरा जो टारगेट है वो 25 लाख के आसपास नेक्स्ट फाइनेंशियल ईयर में आना चाहिए। उससे आपका अगर एवरेज प्राइस बढ़ता है तो उतना आपका टॉप लाइन भी कम हो जाएगा। सपोज मैं 20 लाख कर रहा हूँ, 2500 का है तो 500 करोड़ हुआ। लेकिन अगर मैं एंट्री लेवल की 15 लाख की प्रोडक्ट बनाता हूँ तो नंबर्स जो है 2500 की जगह पे 2700, 2800 तक हो सकता है। तो मोटा मोटा अगर हम पकड़ेंगे तो सेम ग्रोथ एज बी कमिटेड की 25% की जर्नी जो है टॉप लाइन से लेके बॉटम लाइन तक की वो जारू रहेगी, जिसमें हम लोग मार्जिन इंप्रूवमेंट पे, नई टेक्नोलॉजी पे और कुछ नए सेक्टर्स में, ये जो हम लोग काफी बड़ा एग्जीबिशंस कर रहे हैं वो इंटरनेशनल मार्केट को और कॉरपोरेट्स को फोकस करने के लिए। तो कुछ विजन्स जो है वो 6 months to 1 year पहले आपको काम स्टार्ट कर देना पड़ेगा।
तो उसकी प्री ऑपरेटिंग प्रिलिमिनरी एक्सपेंसेस भी आपकी बढ़ती जाएगी। तो ग्रोथ जर्नी तो यही रहेगी 20-25% जो हम लोग हर साल आपका बोल रहे हैं। Sir, where I was coming from is one of the peer that is also listed. They are actually targeting 50 lakhs per machine. So, आपका visibility, when can we get to that level where we are manufacturing higher end machines and hitting that run rate? तो वो एक्सपोर्ट पे जब काम होगा ज्यादा उस पे ये लेवल की बात हम कर सकते हैं, लेकिन एवरेज 50 लैक्स तो मुझे नहीं लगता है कि किसी का भी इंडिया में आता होगा। और अभी कितना आता है वो देखना पड़ेगा टोटल नंबर्स के हिसाब से। तो एवरेज प्राइस से ज्यादा मैं सपोज आप देखो एस डिजाइनर जो है नंबर 1, उसका एवरेज प्राइस है वो 15 to 16 लाख। अब उसने वीएमसी भी ऐड कर दिया तो 20 लाख ही यार, लेकिन उनकी कैपेसिटी है 8,000 मशीन की और वो रियलाइजेशन करता है 6,000 मशीन। तो कैपेसिटी उसकी रियलाइजेशन में एवरेज प्राइस से ज्यादा सपोज इंडिया में डीएमजी जो है वो इंपोर्ट करता है जर्मनी से, उनकी एवरेज प्राइस है वो मेरे हिसाब से 1-8 करोड़ की आती है। 100 मशीन्स बेचता होगा 100 करोड़ की। तो नंबर्स कम हो जाएंगे जब आप एवरेज प्राइस की बात करेंगे। आपको 50 लाख नहीं देखना है, उसके सामने 5,000 मशीन बनेगा कि 6,000 बनेगा। सो एवरेज प्राइस इज लिटिल बिट ट्रिकी, क्योंकि सबसे ज्यादा जो कंजप्शन होगा वो ऑटोमोबाइल की तरह 2 व्हीलर का होगा, वैसे ही हमारा टर्निंग मशीन्स का होगा। उससे ज्यादा नंबर्स कोई सेगमेंट में आएगा ही नहीं। सेकंड वीएमसी पे आएगा, उससे ज्यादा कोई आएगा ही नहीं। तो जैसे जैसे हायर एंड प्रोडक्ट डेवलप करेंगे उसमें नंबर्स कम होते जाएंगे। तो एवरेज प्राइस जो है वो मुझे लगता है कि रियलिस्टिक में 25-30 लाख तक की पॉसिबल है कमिंग 2-3 इयर्स के लिए। लेकिन उनके सामने नंबर्स जो है वो काफी बड़ा हो सकता है कि हम आज 2000 की बात करते हैं तो एज डिजाइनर है उसकी कैपेसिटी बिल्ड कर रहा है वो 10,000 मशीन्स की। वो एवरेज प्राइस से ज्यादा नंबर ऑफ मशीन्स पे फोकस करता है जहां पे डिमांड बहुत है। तो एवरेज प्राइस अपना 20-25 लाख का ही फोकस ज्यादा रहेगा। बहुत ज्यादा एवरेज प्राइस मुझे नहीं लगता है कि करना इतना इजी है। Sir, last question from my side. Any updates on the JV or partnership that we were planning? Yeah, Or that we and already how could that impact us in the next 3 to 5 years? नहीं, उसमें दो आइडियाज है कि हम लोग जो एक्सपांशन कर रहे हैं नए प्लांट का, उसके लिए जो टेक्नोलॉजी आएगी उसके लिए उनको वर्ल्ड वाइड जो मार्केट है उसके पास, उसमें हमने जापानीज के साथ जो मीटिंग्स की है, ताइवानीज के साथ की है, उसमें जापान का थोड़ा मैटी का इश्यू ज्यादा लग रहा है क्योंकि वो डिफेंस पे और अदर सेक्टर्स पे ज्यादा रिस्ट्रिक्ट करेगा अगर हम लोग उसको खाली स्ट्रेटेजिक पार्टनर टेक्नोलॉजी में भी लाते हैं। तो अभी हमारा एक जनवरी में इमटेक्स के अंदर जो मीटिंग है वो जर्मन्स के साथ है। तो डेफिनेटली हम लोग जैसे कि ये नया एक्सपांशन का काम शुरू करते हैं उसके पहले ये काम करके कंप्लीट करेंगे, क्योंकि ये हमारी ब्रांड से ज्यादा वर्ल्ड वाइड उनकी डिस्ट्रीब्यूशन नेटवर्क से ज्यादा उनके पास जो न्यू जनरेशन की टेक्नोलॉजी है उसमें काफी जगह पे वो हमें सिग्निफिकेंट ग्रोथ पे और ब्रांडिंग पे भी हेल्प करेगा। तो वो डिस्कशन चालू है। काफी बड़ी जो अनाउंसमेंट है उसमें उनकी ट्रैवल प्लान है वो बैंगलोर एग्जीबिशंस जो है जनवरी एंड में, उसमें है जिसमें हम लोग 3 बड़े लीडर्स को मिल रहे हैं ये जेवी के कारण, और उसमें कुछ प्रोडक्ट्स भी हम इंडिया में बनाएंगे। तो इन शॉर्ट हम लोग नया काम शुरू करने से पहले उसके साथ आगे बढ़ जाएंगे। Thank you, sir. Wish you the best. Thank you. Thank you, Deepak. We'll take the next question from CA Amit Kumar. Please go ahead. Thank you for the opportunity, sir. Thank you very much. Sir,
I would like to know what is the market size of CNC machine in India and in the world in terms of volume and value, and what is our market share? This is my first question. Market size, consumption wise, I think it's 16 to 18,000 crore, and manufacturing wise 8 to 9,000. Rest is import, and our compared to consumption, our market share is less than 2%, and compared to manufactured in India, our market share is 3.5 to 4%. Okay, I've just started following this company. If you could give some idea, like this turning center, vertical machining center, tuning lathe, where these machines are used and for what purposes? If you could give some idea. Machine tools, Amit Kumar ji, is the backbone for any of the manufacturing segments. Machine tools, I think we are contributing to more than 3,000 segments. Just say, for example, aeronautics, railway, defense, pump valve, general engineering, plastic injection molding, pharma, textile. So everywhere, machine is the basics for any kind of the manufacturing segment, automobiles, EMS. So many segments we are capturing. And the use for this machine is for plastic industry also. So I think manufacturing को अगर grow करना है तो machine tools is must. तो basic essential है, और जिसमें हम लोग 5 to 6 players जो है वो almost 85 to 90% प्रोडक्शन करते हैं, जिसमें वेरियस टाइप ऑफ प्रोडक्ट आती है. जैसे ऑटोमोबाइल एक जनरल वर्ड है, वैसे ऑटोमोबाइल की तरह मशीन टूल्स इज जनरल वर्ड कर तो ऐसे. जैसे एंट्री लेवल पे जैसे टू व्हीलर होता है जिसकी सबसे ज्यादा कंजप्शन होती है जो हमारी लाइन में, वो टर्निंग मशीन है जो राउंड पार्ट को मशीन करता है. उसके बाद आता है 3 एक्सिस मशीनिंग सेंटर, वर्टिकल मशीनिंग सेंटर, जो स्क्वायर पार्ट के लिए ज्यादा यूज होता है और डाई एंड मोल्ड के लिए होता है. फिर 4 एक्सिस कुछ गियर से कुछ वाल से उसके लिए यूज होता है. उसके बाद 5 एक्सिस जो एयरक्राफ्ट कंपोनेंट. तो we have a more than 65 different variant, and compared to our competitor, हमारे पास सारी प्रोडक्ट बास्केट है, सारा डिस्ट्रीब्यूशन नेटवर्क है. हमारा जो पास्ट में जो चैलेंजेस रहा था वो प्रोडक्शन का था. हम लोग 600 मशीन्स बनाते थे, फिर 1200 किया, फिर 1500 किया, फिर 2000 किया, अब हम लोग 2500, और उसके बाद काफी बड़ा एक एक्सपांशन के लिए हम प्रोजेक्शंस कर रहे हैं. तो ये ओवरऑल मशीन टूल्स जो है वो बैकबोन है मैन्युफैक्चरिंग सेगमेंट. Okay, thank you. And we have bids of 765 crore. So how much we can expect to convert it into orders? Just ऐसे नहीं है यहाँ पे. जनरली whatever order we are receiving, say for example, per day we are dispatching 4 to 5 machines, and we are receiving 6 to 7. Our target is that we'll receive at least 15 to 20%, 20% minimum extra order, so we can have a plan out. क्योंकि हमारे पास काफी बड़े वेरिएंट है, काफी बड़े मॉडल्स है. तो ऑर्डर्स एग्जीक्यूशंस जो होता है वो कुछ ऑर्डर्स है वो बुक एंड बिल में होता है, जिसकी एवरेज आउट जो है वो 20-25 नंबर्स की होती है, जो सेम मंथ में मांगेगा कि आपको देना ही देना है. और कुछ ऑर्डर्स जो होते हैं वो काफी बड़ी लीड टाइम होते हैं. ये 2.95 करोड़ का एक ऑर्डर है, सिंगल मशीन ऑर्डर, वो 6 मंथ का टाइम रहता है. लेकिन मोटा मोटा ऑर्डर फॉरवर्डेड लास्ट ईयर की कंपैरिजन में ज्यादा ही आएगा, क्योंकि पर डे आप जितना डिस्पैच करते हो उससे ज्यादा ऑर्डर आपको पास होना चाहिए. ऑर्डर तो कभी खत्म नहीं होगा. Thank you very much. Thank you. Thank you, Amit. We'll take the next question from Abhishek Garg. Abhishek, please unmute. Thank you for the opportunity. Sure. Yogesh ji, thank you for very good result, sir. सर बस एक क्वेश्चन था मेरे को. आपने लास्ट कॉल पे गाइड किया था FY25 में 25% रेवेन्यू ग्रोथ के हम टारगेट कर रहे थे.
क्वार्टर वन में तो 25% ग्रोथ था, इस क्वार्टर में 13% ग्रोथ किया हमने रेवेन्यू में। तो डू वी एक्सपेक्ट कि H2 में हम ज्यादा ग्रो करेंगे 25% से, कि नहीं, फुल उससे 25% आ जाए? ज्यादा आप देखो अभिषेक भाई, ईबिटा पे हमने ज्यादा फोकस किया, मार्जिन्स पे इम्प्रूवमेंट लिया है। कुछ सर्विसेज देने से आपकी प्रॉफिटेबिलिटी बढ़ती है। सपोज कि 1 मंथ का ट्रेनिंग देना है और कुछ प्रोजेक्ट्स में आपको उनके 10 कंपोनेंट है वो प्रूव आउट करना है, सो आपकी प्रोडक्शन कैपेसिटी भी यूटिलाइज होगी वहां पे, लेकिन आपकी मार्जिन से वो काफी इम्प्रूव होगी। तो अगर आपको बैकवर्ड इंटीग्रेशन करना है तो आप नई टीम लाओगे तो 1 साल निकल जाएगा। तो आप 10 लोगों को बैकवर्ड इंटीग्रेशन पे यूटिलाइज करो कि जिससे कि आपकी मार्जिन पे इम्प्रूवमेंट आया। मैंने हमेशा कहा है कि मैं कॉस्ट पे, एक्सपेंसेस पे और मार्जिन पे ज्यादा इम्प्रूवमेंट लाऊंगा रादर देन टू गेट द स्ट्रेच ऑफ टॉप लाइन। लेकिन हम दोनों तरह से साइमल्टेनियसली करेंगे काम। कुछ सर्विसेज जो है वो और कुछ कंपोनेंट प्रूव आउट करने के कारण अगर 2 मशीन्स कम बनता है लेकिन उनकी मार्जिन्स जो है वो काफी रैंप अप होती है, तो ये एक स्ट्रेटेजिकल डिसीजन रहेगा। अब देखो ईबिटा पे काफी अच्छा इम्पैक्ट दिखने को मिल रहा है और मेरे पास इन्वेंट्री भी काफी अच्छी हुई है, तो जिसके लिए ये रीजन है कि, और ये जो 25% की जो हमारी बात है वो पूरे साल की है। और बिजनेस जो है मशीन टूल्स का वो मैच की तरह ही है कि लास्ट 5 ओवर 10 ओवर में ही सब होता है। तो Q2 वर्सेस Q3, आप लास्ट 2 इयर्स का भी अगर आप देखेंगे रिजल्ट तो आपको पता चलेगा कि हर क्वार्टर में, और फोर्थ क्वार्टर जो होता है वो कोई भी कैपिटल बूस्ट के लिए चैलेंजिंग होता है, जिसमें ज्यादा से ज्यादा रेवेन्यू और ज्यादा से ज्यादा मार्जिन्स होता है। तो डेफिनेटली आई एम कॉन्फिडेंट दैट we'll achieve more than that in Q3, Q4. थैंक यू सर, थैंक यू। Thank you, Abhishek. Thank you, Abhishek. We'll take a follow-up question from Samarth Nagpal. Samarth, you can go ahead. हाय रुपेश सर। सर एक क्वेश्चन था, मतलब एक सजेशन ही था। मतलब अगर हम देखें, हमारा कंसिस्टेंटली परफॉर्मेंस इन टॉप लाइन आल्सो हैज बीन 20-25%, वी हैव ग्रोन। एंड अगर मैं फेस्टिवल पीरियड भी निकाल दूं इस साल का, वी हैव सीन कंपटीशन ग्रोइंग बाय 30%। अब वो ये हो सकता है कि कैपेसिटी ज्यादा है या बाकी चीजें ज्यादा है। हमारा कैपेसिटी एक्सपेंशन अब जनवरी में जाके होगा, जो कि मार्च में कंप्लीट होगा। ऑर्डर बुक ऑलरेडी बहुत स्ट्रांग है। सो जस्ट अ सजेशन एंड मे बी अ फीडबैक की, कीपिंग असाइड की पेमेंट का इशू, जहां पे हमारी पेमेंट नहीं आ रही है, हैव वी एक्सप्लोर्ड ओवर टाइम का सिनेरियो वेयरइन वी पे मोर वेजेस एंड अपने फैक्ट्री को हम ज्यादा रन कर पाए उस तरीके से, ताकि हमारा जो थ्रूपुट है वो थोड़ा सा और ज्यादा हो। लेट्स टेक हम 80-82% थ्रूपुट पे हैं, इसको हम 90%, 92% तक लेके जाएं, बिकॉज ऑर्डर बुक तो सर स्वेल ही होती रहेगी और हम 2500 मशीन पे ही जा रहे हैं। मतलब जस्ट अ सजेशन एंड अ फीडबैक फ्रॉम यू। एक तो पहला बात की जो प्रोडक्शन की जो प्रोडक्टिविटी बढ़ानी है, तो 2 रीजन है, ओवर टाइम्स और मैन पावर से ज्यादा हमें करना है कि सप्लाई चेन, क्योंकि अपना जो डिफरेंट डिफरेंट वेरिएंट है उसमें हम लोगों का एक मशीन में मोर देन 1000 कंपोनेंट, और टोटल बास्केट की हम लोग बात करें तो अभी कैलकुलेट हुआ था कि हम लोग 19,000 कंपोनेंट की इन्वेंट्री मैनेज कर रहे हैं जो अलग अलग मॉडलों में लगेगी। तो सप्लाई चेन और सप्लाई चेन से आया हुआ कंपोनेंट, हमने जो बैकवर्ड इंटीग्रेशन किया है उसका कंपोनेंट और उसकी क्वालिटी, ये प्रोडक्शन अगर रैंप अप करना है हमें, तो उसके लिए आपको सप्लाई चेन, बैकवर्ड इंटीग्रेशन और आपकी स्किल्ड की जो और कंपोनेंट की क्वालिटी वो इम्प्रूव करनी है। खाली ओवर टाइम करने से असेंबली ज्यादा बढ़ जाएगी, लेकिन आपके पास असेंबली के लिए कंपोनेंट ही शॉर्ट पड़ रहे हैं। तो ज्यादा टाइम हम लोगों ने ये क्वार्टर पे बैकवर्ड इंटीग्रेशन पे फोकस किया है। ये एक टारगेट था कि ये साल में हम लोग ईबिटा पे जो जंप लाना है। सप्लाई चेन्स अगर स्मूथ रहेगी तो डेफिनेटली प्रोडक्शन भी इम्प्रूवमेंट आएगा। और यहाँ पे आपको पता है कि जन्माष्टमी के दिन हमारे यहाँ पे एक वीक का छुट्टी रहता है, तो वो हम लोग ओवर टाइम में ही उसको रैंप अप कर लेते हैं। तो प्रोडक्शन बढ़ाने के लिए सबसे ज्यादा जो चैलेंज है वो कंपोनेंट की इन्वेंट्री रहेगी, कंपोनेंट की क्वालिटी रहेगी, और अपना जो सप्लाई चेन है वो स्मूथन होनी चाहिए, जिससे कि प्रोडक्शन है वो हम लोग
90% तक बढ़ा सकते हैं। सर एक फाइनल क्वेश्चन है, अगेन ऑन द जेवी फ्रंट, लेट्स टेक हमारा नेक्स्ट क्वार्टर के अंदर जेवी हो जाता है, एक सिनेरियो है जेवी होगा, एक सिनेरियो है जेवी नहीं होगा, और मेरे को लैंड अलॉट हो जाएगी जो कि हम काफी क्लियर है। तो अगर मेरा जेवी होता है तो इमीडिएटली हम अपना कैपेसिटी पार्टनर के साथ कितने टाइम में एक्सपैंड करने का सोच रहे हैं कि कितना करेंगे, और अगर जेवी नहीं होता, हमारे इंटरनल एक्रूवल्स नहीं है, तब क्या प्लान होगा हमारा एक्सपैंड करने का, और उसके अंदर कितना टाइमलाइन लगेगा? लेट्स टेक हम 2500 के कैपेसिटी पे आ गए हैं, वहां से हमारा नेक्स्ट प्लान क्या होगा? नहीं देखो, बाहर से ही करना है। जेवी का ऑब्जेक्टिव फाइनेंस मॉडल नहीं है, जेवी का ऑब्जेक्टिव अलग है, एक्सपांशन का जो ऑब्जेक्टिव है वो अलग है। एक्सपांड करने के लिए फेज 1 में जो फंड रहेगा वो कोई डेट तो है नहीं, हम डेट फ्री है। कुछ डेट लेके कुछ इक्विटी से भी आप अपना जो नया प्लांट का एक्सपांशन है वो कर सकते हैं। जेवी के अंदर अगर कोई पार्टनर आता है, अगर वो टेक्नोलॉजी देता है तो उनको इंटरेस्ट रहेगा कि थोड़ा परसेंटेज 2-5% मेरा भी हो, जिससे कि मैं दुनिया की बेस्ट टेक्नोलॉजी दूं। दुनिया का उसका सबसे बड़ा जो डिस्ट्रीब्यूशन नेटवर्क है वो मैं दूं। तो उसके लिए वो जगह ओपन रखी है। तो एक्सपांशन का जेवी से कोई लेना देना नहीं है। एक्सपांशन जो हमें करना है वो करना ही है। उसके लिए अगर जेवी में कोई डिमांड करता है तो उसके लिए एक स्पेस स्ट्रेटेजिक पार्टनर के लिए ओपन रखा है। तो पहला ऑब्जेक्टिव जो है वो एक्सपेंशन है, जिसको हम करेंगे नेक्स्ट फाइनेंशियल में। और अगर जेवी उसके बाद चालू होने के बाद, प्रोजेक्ट कंप्लीट होने के बाद भी होता है तो कोई उतना हार्ड एंड फास्ट नहीं रहेगा। लेकिन एक थॉट प्रोसेस था हमारी जो कंसल्टिंग टीम है, कैप्टिफाई की टीम है, कि हम लोग जेवी करेंगे तो स्ट्रेटेजिक के साथ करेंगे, क्योंकि उनको कुछ देने के साथ कुछ चाहिए भी होगा। लेकिन इनके साथ जुड़ना उनको ठीक नहीं है। हम एक्सपांशन के लिए काफी अलग वे से भी एक्सपांशन कंप्लीट कर लेंगे, और स्ट्रेटेजिक वे में हमने ये जेवी के लिए जो आइडिया है वो ओपन रखा है। ठीक है सर, थैंक यू सर, थैंक यू फॉर आंसरिंग ऑल द क्वेश्चंस एंड ऑल द बेस्ट फॉर द रिमेनिंग 2 क्वार्टर्स। आई होप 90 या 100 का एक क्वार्टर मिले, 90 या 100 सीआर का, हम तो वेट कर रहे हैं। थैंक्स फॉर आंसरिंग द क्वेश्चन सर, ऑल द बेस्ट। थैंक यू। Thank you. So there's a question on the chat from Mr. Gaurav Chandra. Can we expect the international tie-up in Q4, and do we plan to build the factory together with them, or can we expect all of this to be completed before 31st March 2024? We have a, Gauravji, we have a 3 major JV partners meeting at Bangalore exhibitions. They are specially coming to discuss about this JV, and they wanted to see our product also, and they wanted to see the exhibition also. So definitely our objective is to complete the JV in this financial year. But without JV also, we are ready to geared up our new expansion plan in next financial year. His second question is, can we run the factory 24 hours a day if needed to get velocity in sales? Yes, but we can run the 24 hours factory, but to assemble the machine in 2 shift, 3 shift, it's not that much good idea. In India, nobody is assembled the machine on 2 shift or 3 shift. We assemble the machine on 12 hours to 14 hours. But our costly machine shop, costly powder coating plant, costly sheet metal plant is working on 24 hours. Sure. So since that was the last question for the day, would you like to give any closing comments? As we discussed in all the quarters that machine tools business first quarter is slow, second quarter is little bit 20-25%, third quarter is 25 to 30%, fourth is whatever last जो क्वेश्चन था उसमें बोला 90 करोड़ 100 करोड़। तो ये सब स्पीड जो है वो क्वार्टर ऑन क्वार्टर ही आएगी, और मार्केट शेयर्स भी हमारा उतना ज्यादा नहीं है कि कोई भी मार्केट की इम्पैक्ट आएगी। थोड़ा हमें रैंप अप करना है अपनी डिस्ट्रीब्यूशन नेटवर्क को। हमने पहले फेजेस में
रैंप अप किया था अपनी प्रोडक्शन को और प्रोडक्टिविटी को, जिसको हम लोग स्ट्रीमलाइन करते आ रहे हैं। और अब हम लोग सेल्स फोर्स और सर्विस नेटवर्क और टेक सेंटर्स को बढ़ा रहे हैं। कुछ नए नए एरियाज जो प्रोडक्ट की कंजप्शन है, 5 एक्सिस मशीनिंग सेंटर, EMS सेक्टर के लिए हाई स्पीड 20,000 RPM ड्रिल टैप सेंटर, और वर्ल्ड मार्केट में हमने एंटर करने के लिए एक्सपोर्ट का एक डीलर्स भी अपॉइंट किया है। और अब लोग नेक्स्ट फाइनेंशियल ईयर में जर्मनी के अंदर काफी बड़ी टेक्नोलॉजी डिस्प्ले करके वर्ल्ड वाइड एक्सपोर्ट के डिस्ट्रीब्यूटर्स भी हम लोग करेंगे। और जो एक्सपांशन के लिए हम लोग काफी बातें करते हैं, उसका काफी हद तक का काम गवर्नमेंट की साइड से हो चुका है। और विद इन this financial year we will definitely announce about this new land, and हम लोग जो promises किया है 20% 25% उसको definitely fulfill करेंगे। और market is supporting us with this significant growth in our order book also, and हम लोग ये Q3 Q4 के अंदर और भी अच्छा परफॉर्म करेंगे, ऐसी हमारी जो एक्सपेक्टेशन है। Thank you very much, Vinay ji. Thank you, sir. Thank you to all the participants for joining us on the call, and thank you to the management team for giving us their time. This brings us to the end of today's conference call. Thank you, sir. Thank you.